Okay, so let's start the high availability topic on Fortinet firewall today. So let me share my screen. Okay. So I was doing practice somewhere in the background. Let me stop the topology. Is my screen through, guys? Everyone is able to see? So see how this is looking like. So however, we have two units here. See, one is FortiGate firewall 1, another one is FortiGate firewall 2. However, once you will be deploying them for high availability, so they both will be working like a single unit. Is that good? Single unit means not, we are not combining them all together. No, but we are just deploying these firewalls there so that if one firewall is going down, so there is another firewall who is already in hot standby. He'll be going and pick up the session. Is that good? For example, anyone from your internal side want to go on internet or somewhere outside. So how many way you have right now to reach there on internet, guys? Tell me. Yeah. How many ways? One, through firewall one. Yes. And second, through firewall two, isn't it? What do you say? Are you able to see the screen and you are able to understand the topology well? Just confirm once, guys. Yes. From here to reach there, how many ways we have? This way first, and this is second way, isn't it? Means what? So we did what here? We just took two unit of the firewall, Fortinet firewall, with the same configuration, same model, and you can say same version. All the things are identical. They are with the same memory, same CPU, everything is same. Even the ports you are connecting, see here, on the Fortinet firewall 1, you are connecting port 2 as a inside. On the firewall 2, you are connecting your port 2 as a inside. Same, similar, see? Yes. And here as a outside port, you have port 3 here, similar. On Fortinet firewall 2, port 3 is similar. Correct? Port 1 here as a management. Port 1 here is a management, and they both are connecting one switch, management switch, and further extended to your admin PC. This PC will be taking GUI access of firewall 1 and firewall 2, and we are going to configure it in a manner where they will be available for each other in high availability mode. Is that good, guys? So let's start without wasting time. So I'm just going and bringing all the firewall as well as other devices, that is supporting devices here in this topology, so I can start the concept for today. Is that good, guys? You guys are okay with the topology, or any question so far before starting? Please ask. Yes. Javed, Kushal, Arun, Abdul, Deepak, Ayush. Any question, guys? Please ask. Now please continue, sir. Yeah, okay, good, good. Let's start then. Okay. So what we are going to do first? Let's go and open your all the firewalls here and do one thing. Let me wipe it out so it will be coming to its default setting, because everything I have to show you from scratch. That's why I'm doing it. Let me bring both the firewalls up. Let me make it a little bit bigger.
Good, guys. Devices are looking, I think, little bit bigger now. Now you will identify like what are the names mentioned in front of the devices. Okay. So what I'm going to do, I'll be taking my Fortinet firewall as a CLI. Once I will click on this, I got the CLI. See everyone. This is your FortiGate firewall one. Even this is right now in what mode? This is deployed by default. Once you will bring a new brand new Fortinet firewall unit, that would have default setting as standalone. Standalone means single unit. Okay. So default login is admin and password is blank. Blank means I will just press enter and it will ask for changing the password. I am giving here 123, 123. And once that is done, means my password is changed. Now on my password is 123. And what is the login name? That is admin. Is that okay for everyone, guys? So what I did first, base configuration. Okay. Or you can say little bit theory part. Yeah. Take CLI of firewall 1 and what need to do? Login, press as admin and password blank. Means what? Press enter. Okay. As you will press enter, note. Please don't use any pen or annotation, guys. Thank you. Note, it will ask for forcefully changing the password. Now set password as 123. Now login is what, guys? Now on anyone? Admin. And what would be the pass? 123. So the same thing I will repeat on firewall 2 as well. We have. You are getting it. Once I am saying firewall 1 and firewall 2, right? Yes, no, guys, tell me. Once I am saying firewall 1 and firewall 2, you guys are getting it, right? This is firewall 1. I just took CLI of this. This is firewall 2. Let me take CLI of this as well. It is again asking for login. I'm just putting here admin. I do not need to type any password here because this is blank. You are forced to change your password. Please input a new password. Now I'm going and putting here 123. 123 password is not shown like what I'm pressing here because of the security reasons. Is that good? Everyone is following? Yes, no? Tell me, Yes, sir. guys. Fine. Going on, let's do. This was the theory part 1. Okay. Point number 2. Let's take that. What is that? 2. Change the host name. Change the host names. So if you'll go on firewall 1, what command you need to type there? Config, one sec. Config system global. Once we will type this, then type here set host name as firewall 1. I think that is recommended here. Just wait a moment. Let's give this host name. Okay. And press on end. End means what? End means here executed. Means you are doing any changing. Press end button.
end button, not end button, just type end there. And once you will be typing that, means you will do what? You will just make apply whatever configuration you made or whatever command you run. Is that good, guys? And similar way, go to firewall 2 and type the similar way like firewall 2. Is that okay for everyone, guys? Say me, tell me yes, no? Yes, sir. So go on firewall 1 and do this one. Firewall 1 right now. And I'm just going and doing this. See, Fortinet firewall on now host name is changed. Let me show you something very interesting. Once I'm going here and just going and pasting it. Is this changing the name? I went inside your global setting, system global setting. I put and change the name of host as Fortinet firewall 2. But till the time I will not be entering and pressing enter, it is not going to apply the changes. Isn't it, guys? See? So end is very crucial here, guys. Is this good? You're following it? Affirm in yes or just negate like you are not understanding. If you're understanding this, say yes or raise your hand. I'll be seeing there if you are understanding it. Yes, guys. Okay, Javed, thank you. Yes. Anyone else who is not understanding so far? Fortinet is really very easy to understand. So till now, what we have done, we just took the CLI of both the firewalls, firewall units, and did what? Just change the password, user password, login password, and after that just change the host name, like the name of the firewalls. Good? Okay. What next? Let's go and configure some parameters that is really useful to take GUI. Why I'm saying taking GUI? GUI means graphical user interface. I want to take, like I want to access my firewall from some browser, like from some PC in the graphical way, graphical mode. Why we do want to do that? Reason is behind, because these are the next gen firewalls, and all the next gen firewalls actually provide so good interface where you just need to do what? You just need to go on that particular firewall, just like any application like Facebook, like Twitter. We just do surf there, and if we need to make any changes like changing the host name or changing anything in your profile, we are good to understand like where we need to click, correct? So in CLI, that is not really very easy to do. So what are the next step? We are going to configure here GUI parameters so that we can take graphical user interface access of this particular firewall 1 and this firewall 2. And what are the configuration we needed for that? We just need to go on, for example, this port 1 on the FortiGate firewall and port 1 of the FortiGate firewall 2, and do configure IP first, and also allow so that any user who is connected inside with my FortiGate firewall port number 1, FortiGate firewall to port number 1, they'll be allowed to take GUI of my these units. Okay, अंडरस्टैंडिंग इट गाइस? समझ आ रहा है सबको? क्या करने Yes, sir. वाले नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या करने वाले हम अभी? जाएंगे और इधर पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करेंगे सो दैट इस यूनिट का और इस यूनिट का हम लोग ग्राफिकल व्यू देख पाए. अभी तो हम CLI में कर रहे हैं. राइट नाउ वी आर डूइंग इन CLI. सी, दिस इज CLI मोड, isn't it, guys? So how you'll be doing those configuration? Let me give you the command. What are the command? Step number 3. Configure GUI parameters on firewalls. Good. So how will be doing that?
Very simple stuff to do that, guys. And what is that? That is, I am going on firewall 1. Let's suppose right now this is not firewall 1. That is now changed to firewall Fortinet firewall 1. Let me help you guys to reach there. What I will be doing here, simple commands. I will go inside my interface. This is the command that will help you to move into the interface mode. Okay. Once you are inside this, and what need to do next? Say, you'll have to type edit port 1. Everyone is able to see, like, see, this is the management port 1, correct? Here on FortiGate firewall 2 and here on FortiGate firewall 1. Port 1 is what? See, it is connected to switch management, means they are there for management purposes, like we can take GUI using this port. Is that okay, guys? Hello? Yes, sir. Once you will be doing this, like, then again go and set IP. I am setting IP here 192.168.1.51, okay, /24. And once this is done, then again go and say allow access. To access anything using HTTP or HTTPS, we need to allow that. So we'll be putting here set allow access, HTTP, HTTPS, telnet, SSH, all so many things, ping, etc. And once you want to execute the command, then what will be pressing? The end particular end keyword. Is that okay? So this we need to do on both the end. Getting it, guys? Very simple, isn't it? Just change the IP here, 52. That's it. Let's go and copy and paste on Fortinet firewall 1. Config system interface. Oh, there is a typo. This is interface. Good. Let's go again and do. Good. Command is executed successfully. Yes, guys, or no? You are understanding it, right? Go to FortiGate firewall 2 and do the same thing. This is done. Means what? Oh, okay. It is saying one error it is giving. And what is this? Anyone is able to identify. Can't change dynamic IP. What does that mean? Note. This was the error, right? Go here and press a note, put a note. And what is that? क्या बोलना चाह रहा है? कह रहा है by default on Fortinet firewall, port 1 is set as management port. Okay. So the IP configuration setting is set as dynamic. Dynamic means what, guys? Any idea? Like you are not, once you will be bringing your brand new Fortinet firewall on port 1, most of the cases on port 1 is set there as a management port. And once that is management port, the IP configuration is by default set to the dynamic, means it will seek to get IP address from the DHCP server. So if you are giving here static, then you need to do one thing as a change. And what is that? Set mode static. So you just need to go there and change the mode what? Static. Is that good, guys? Following? Once you will be going and doing that, what will happen next? Let me take you guys here. Now it is 100% working. Any error? Are you able to see any error here, guys, now? Yeah, please say yes, no. You're understanding it. Everyone is getting it, right? Yes. So let's go and do what? So
change the mode as static. If you want to configure static IP on port 1, and the same thing we have moved here and did. Go to your port 1 and set mode what? Set mode as static. And on the FortiGate firewall 1 also we need to do. Till now we have done on the Fortinet firewall 1. I hope everyone is getting it. Now, what does it mean? Now, this particular, both the units are ready to be taken for GUI access. So let's go and take the GUI. I'm here on my admin PC. This admin PC is also the part of 192.168.1 network, 1.0 network. This unit has 50.51 IP. This unit has .52 IP. I'm going my admin PC and I'll be giving here somewhere 1.50 IP. Is that okay for everyone, guys? Yes. Let me check if IP is already there. If not, then I'll be going and it has already set the IP. No need to do anything. I am going on my PC and opening the browser because HTTP and HTTPS is already allowed. So I just need to go here and type HTTP. After that, see, I got the access, guys. See, this is the GUI of my firewall. You guys are following with me? Yes, no, till here any question? Very simple steps. Any question so far, please ask. Yes, guys, come up and ask if you have any. Kushal has left. Abhishek is late. Abhishek joined as guest. Abhishek is here. Where is Kushal? Kushal has gone. Javed, Arun, Abdul, any question? No. No, sir. It's okay. Very simple stuff, right? You guys already know because it's been time you are coming in the class, right? So I hope here are few new people joined. Deepak, you joined first day? Abdul, I think it's your something like demo or something test class, correct? Yeah, Deepak and Abdul, I'm asking अरे you guys. पैंट Yes, sir. मैं नीचे हो गई पता नहीं कहाँ कहाँ धुली रखी गीली Yes, sir. Clear now. Yeah? Yes, clear, sir. Okay. It's your first class, Deepak? Yes, sir. Yeah, Oh, yeah. okay. No worry. Okay. Good, good. I just wanted to know the same thing. That's okay. Okay. So till here we have done. Let's go and take access of another firewall who had 52 assigned. Correct? Now see, all together we took access of both the firewalls. This is firewall 2, this is firewall 1. Very simple stuff. Just go and follow. No need to worry for anything. Okay, now you have got the access. What next? We are going to deploy these two units as a what? As a high availability devices. Correct? So how will be doing that? So to do so, go to your system. Seeing everyone, how you'll be doing the configuration of HA. Go your system. I am right now on the firewall 1. Let me help you to go on the system. See here, HA is showing it to everyone. Are you able to see this? HA. Click on HA. What is the right now mode here, guys? Seeing. What is the mode here showing? Mode is standalone. So once you will be purchasing new device, you will get this mode as a standalone. Now we are going to deploy this into either or active or active passive. So let's go. Right now I'm going to deploy it and as active passive. Is that okay for everyone? Hello, hello. And I'll be setting here priority as 200.
And see here what it is saying. The device with the highest priority is more likely to become the HA primary. So once, for example, you are deploying this FortiGate firewall 1, firewall 2 to working all together for redundancy purposes there. So whatever unit you will configure, highest priority will become the primary. Primary means what? What does primary means here, guys? Tell me. Any idea? No? Let me tell you what I'm saying. Primary means once anyone, any internal user want to go on internet, so whoever from both here available, right? Two units we have. Whoever is working as a primary will be taking over for all the traffic and will help you to go through the firewall. Like if this one is the primary, so all the things, all the tasks, this firewall would be assigned for, and this firewall will be doing all the activities. But what will be doing the another unit? Another unit will be there actively listening and seeing all the logs that is being created here. So once this, for example, accidentally or any other reason, for example, this unit is down. So what the second unit will do? Second unit will do take over the connection, and it will not let the internal user know like where is the issue. Means internal user will not get any interruption in their communication. However, these devices are synced with each other in the high availability or in the redundancy mode. If one is working as a primary, another one will be there for hot standby. If this is down, secondary unit will take over the connection. Is that okay, guys? You are understanding it now? So primary means you understanding it now, right? So if priority is set higher and here is the lower, who will become the primary? Tell me. Let's suppose I am giving here priority 200 and I am setting here priority 100. Who will become primary? First one primary. First one. Good. The same thing I wanted to listen from you. So I'm on a firewall 1. I'm setting device priority is 200. And see here, group name I am giving here cluster 1. Cluster 1. See guys, this group name should be identical. Means same to same on both the units. Okay? And here is the password. If you want to give the password, give password. Right now I'm giving here password as 40@123. See here, you'll be able to see. 40@123. See, group name, password should be matching on both the devices. And this is for session pickup. What does this mean? Session pickup means what, guys? If you are enabling this as tick, then what will happen once, for example, primary device is down? So secondary device will be picking up the session. Session means what? Let me tell you. The same thing I just told before. For example, this internal user has access of something which is on the internet. He is surfing some website or he is watching some video. So once he is watching the video, let's suppose this is the primary unit is helping this internal user to do all those things. If this user is down, this particular device is down, so let this user, this firewall to another box do pick up the session where he left. Okay, so this internal user will not be impacted. He'll be keep getting all the things was already going on there before the device was up. Now because this is down, even this device will take over and will not let the internal user know like if there is any latency or any type of interruption happening. समझ में आ रही सबको बात? सेशन पिकअप का मतलब है जब कभी भी इंटरनल यूजर विल गो आउटसाइड, सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, आपका फायरवॉल एक सेशन बनाता है, करेक्ट? वो सेशन क्या है, रेप्लिकेट होता रहेगा आपके सेकंड डिवाइस पे भी, सो दैट कि अगर ये डिवाइस डाउन भी हो जाए तो क्योंकि इसके पास भी सेम सेशन है और आपका ये इंटरनल यूजर स्विच के थ्रू इधर भी कनेक्टेड है इधर भी कनेक्टेड है, देन व्हाट विल हैपन देयर गाइस? अगर ये डाउन हो जाएगा तो इस तरफ से ट्रैफिक फ्लो होने लगेगी और इसका टेक ओवर कौन, इसका काम कौन करेगा? स्विच करेगा. इज दैट गुड? यस, नो गाइस, टेल मी. अंडरस्टैंडिंग इट वेल? ओके,
Yes, Done. sir. Okay. So this means that. So do you want to turn it on or we do not want to turn it on? What do you recommend, guys? On it, sir. Definitely. And heartbeat interface. This is the interface using which what will be checked. This, see here, we just took two interfaces here, even for redundancy. So what is happening? How your both the units are coming to know, like the second unit or first unit is down using this particular interface that is called heartbeat interface. Means every 200 millisecond I am saying, each node is going to send hello, 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 I'm alive, all these things they are going to send to each other. Okay, so that they will be alive. Along that these interfaces, both the firewalls are using to send their sessions to each other, like they are sharing and exchanging the sessions using this particular interface. So this is again crucial to set, and in our case we have two, but right now I'm just taking the port number 5 here. That's it. This is the configuration really required on the FortiGate firewall 1 that I'm going to do in the first go. I'm clicking on OK. See, it is saying, because there is no such device available right now who is again participating in the cluster 1 like in the high availability. That's why the role itself, firewall 1, announced that I'm the primary device. No issue, just wait. I'm going on here. Let me come in. I'm inside. Okay. Again, I'm going on my another unit and doing what? Going on system, going on HA. Same configuration, active passive. I am giving here, let's suppose 201 as a priority. What will become then? See, group name I am giving here, cluster 1. Same, it should be identical. Password also should be identical, 40@123. If anyone remember from the last, I did the same. Heartbeat interface, I am taking port 5 here as well and clicking on OK. As I will click, let me go. It's okay, guys. See, it identified that I am the primary now. I'm FortiGate firewall 2. Yes, Fortinet firewall 2. Why I am primary? Because my priority is higher. Okay. Why the other one is not primary, secondary, but this is not synced actually. Synced means what? All other information like system interface, system admin, all other things that is really essential to know both the boxes, they are not synced. Right now, if you will go here and you will click on refresh, see, see now it is, because this is secondary, you will not get access of its what? Its GUI. Just wait here for some time, somewhere like 3-4 minutes. Once they both will be synced, then we will be continuing the next. Yes, guys, any question, please ask till here. Sir. We just configured what? We just configured your high availability configuration here. Any questions so far? या if priority same है तब क्या condition रहेगा? Priority अगर same है, Hmm. oh, that is good, man. No worry, let it come up, then I'll be showing you what would be the condition and what will happen there. Okay, just wait. Any other question from anyone else? Yes, guys. सर ये दोनों फायरवॉल तो सर आपस में सेशन टेबल शेयर करते रहेंगे, Yes. चेंजेस भी अपडेट करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे सर. सो होगा Changes क्या में? कि अभी जैसे ये सिंक हो जाएंगे ना, तो आपको गोइंग ऑन जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कहाँ करना है? प्राइमरी डिवाइस पे. और प्राइमरी डिवाइस पे आप कॉन्फ़िगरेशन करो, सेकेंडरी डिवाइस पे ऑटोमेटिक इंप्लीमेंटेड हो जाएगा, वो रेप्लिकेट हो जाएगा. है ना अच्छी चीज? Not only the configuration will be replicated, apart from your sessions also will be replicated there, and the secondary device will be listening and seeing and monitoring all the things are going on the primary device. Why it is doing that? So that once the primary device goes down, secondary device will have all the information that is required. So it will take over and will keep continuing all the traffic was going on using the firewall 1 or the primary device. Is that making sense?
Yes, guys. Vikram, are you in? Okay, good. Okay. So let's go and see if they are synced or not. Let me go here and update this. It takes up to 4-5 minutes. Okay, no worry. Here is 47 sessions. Here is 44. Like sync is on progress. Once they will be synced, it will be showing here synchronized. Okay, and it will be showing here the green signal. Just wait. Any other question if you have, then you can ask. Feel free to ask. We are up. See? Yes, guys. Hello. Yes, sir. Yeah. Now they are synced, right? Good. Now on what will happen? Let's come to the Javed. You asked or Arun asked the question like if the priority is same, then what will happen? Yes. Who asked? Sir, me. Okay. So for that you need to do what? Just let me go here on the HA and click on edit. Let me just go a standalone. Okay, that's good. As I'll be clicking on a standalone means I am out of the clustering system. If the firewall 2 has gone out, then most probably the firewall 1 should come up and it will take over for the what? For the primary. Okay, just wait for a moment. I'm going to tell you like is logged out. Oh, Fortinet firewall 1. See? Okay. If you go here in the dashboard and add widgets, I'm adding it so that later on I'll be showing you a few wonderful things. HA status, click on add widgets. Add HA status, will to save changes. I think no, it's not taking. Let me update it again. Okay. I'm right now 14. Okay, that's good. So because this is now individual single unit, I just need to change that. Okay, no issue. I just did it promptly. This is not recommended to in the production environment, guys. So never do such things on the 40 in your Fortinet real environment. If you need to do anything, just do this in the lab. Okay. Yeah. Now it's added. Security fabric, we have only Fortinet firewall 2. And if you go downside, are you able to see here? HA mode is what? Standalone, isn't it, guys? Tell me.
Do you agree? And what about the firewall one? It's not coming up. Let me go here and take like this. It will take little bit time. No issue. I am going on my firewall one, firewall two. And what I'll be doing? Wait. Let me go. Where I'll be going? I will go to system, then HA. Oh, it is set to cluster. Okay, no issue. Once I am clicking on this active passive, I'm on firewall 2. I'm giving here 200 port. Everything is good, right? Password is 40@123. Active passive 200 40@123. Click on OK. That's good. Let's wait now. Let it come up. Keep waiting. It is little bit time taking because both the devices are doing what? Both the devices are just going and doing their sync process. That's why it can take time. See, now it is saying what? Who is primary, who is secondary? Are you able to see, guys? Hello? Anyone there? Just say yes or no, guys. Firewall 1 is the primary. So what is that? What is the reason why he is primary if having the same priority both the parties? What could be the possible reason? Highest MAC address. Not exactly, or, sir. Or highest interface IP. So what is the first thing? First thing, Fortinet high availability consider the priority value set for both the devices or each the devices. If that is not set, okay, that is, or you can say if they are identical, then it will move to the next step. Is that okay? So there are different criteria. On the basis of that, your units will become primary and secondary. Is that okay till here? And if the priority is matched, then what it will do? It will go and move to the next criteria. And what is the next criteria? It will check in among all the units who has come up first, means the system uptime. Who has the system uptime more in both? See? Able to see it? Okay. बट सर इन जैसे सिस्को में होता है ना कि अगर प्रायोरिटी सेम हो तो हाईएस्ट मैक एड्रेस देखता है या फिर highest Cisco, IP. correct. You are talking about the HSRP and other features, right? HSRP इवन के HA में भी ऐसा सीन होता है कि अगर प्रायोरिटी सेम होती है तो ये हाँ, तो डिफरेंट वेंडर है ना भाई, तो डिफरेंट तरह से बना रखा उन्होंने. ओके, because they are different vendors, that's why they are doing differently. Okay, see, who is primary? Fortinet firewall 1. Even if one thing you want to see, let me tell you, what was the IP we configured on Fortinet firewall 1? Anyone have idea? Remember? Let me show you. Let me show you what I'm saying. क्या आईपी दी थी हमने Fortinet firewall 1 पे गाइस? 1.51, करेक्ट? एग्री? अब मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूं. अभी प्राइमरी कौन है मेरा? Fortinet firewall 1, राइट? सी यहां से पता लग रहा है ना, मैं अगर लॉगिन कर रहा हूं और आईपी क्या है अभी Fortinet firewall 1 की? इज दैट 51 और 52? सी, फायरवॉल 1 की आईपी भी चेंज हो गई है. यू आर गेटिंग इट? ऐसा क्यों हुआ? लेट मी टेल यू. देखो हुआ क्या, पहले आपका जो Fortinet firewall 2 था वो था प्राइमरी, नहीं? वही था ना?
तो अगर वो था प्राइमरी तो उसकी आईपी तो सबको पता थी कि क्या है, ये इवन योर एडमिन वाज अवेयर अबाउट दैट। अब अगर तुम्हारा फायरवॉल 1 बन गया प्राइमरी तो आईपी नहीं चेंज होगी, सो दैट इवन योर एडमिन, आपका फायरवॉल इतना ज्यादा ध्यान रख रहा है कि आपका जो एडमिन जिसने एक्सेस ले रखा है उन यूनिट्स का, उनको भी कोई भी चेंज ना दिखे, उनको भी कोई फर्क ना पड़े, इवन दे डू नॉट नीड टू गो एंड लॉग इन यूजिंग अनदर आईपी। बात समझ में आ रही है? जिस आईपी को लेकर के आपने एक्सेस ले रखा था वो आईपी भी आइडेंटिकल हो जाएगी दोनों तरफ। इज दैट गुड? इसके कहने का क्या मतलब है कि यानी कि अगर मैं अभी जाऊं, मैं फायरवॉल 1 पे हूं और इसकी क्या कर दूं, मैं प्रायोरिटी को मैंने कर दिया मान लो 100, 100 कर दिया, देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? एज आई विल गो एंड क्लिक ऑन दिस, नाउ हु इज प्राइमरी? ओ सॉरी, मैंने गलत जगह कर दिया है, प्राइमरी की ही 100 कर दी है ना। हाँ, प्राइमरी की 100 कर दी है, रिफ्रेश करो इसको। लेट्स गो एंड रिफ्रेश इट। ये पहले से टेक ओवर कर रखा ना, तो ऐसे नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। To show you something. हम्म, 1.51 जा चुका है, आईपी यूज में भी नहीं है हमारे। मैं फायरवॉल 2 पे जा करके, ये क्या दिखा रहा है, इसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकता हूँ, दैट इज गुड। यू विल बी लॉग्ड आउट इफ चेंजेस इन प्रायोरिटी कॉज द प्राइमरी एच डिवाइस टू बी रीनेगोशिएटेड। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 करके, चलो अभी थोड़ा सा मजाक बनाते हैं इसका, ठीक है। प्राइमरी अभी फायरवॉल 1 ही है, दैट इज रियली गुड। मैं सेकेंड, और मैं प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे जा करके इसको चेंज कर दूंगा 200। प्राइमरी कर दिए, सेकेंडरी पे, लेट्स वेट। यार ये ना लाइसेंस्ड वर्जन ना होने से ये दुनिया भर के नाटक करता है, आप बात समझ रहे हो? देखो प्रायोरिटीज लेस, लेस का मतलब नहीं बनेगा प्राइमरी, लेकिन प्रायोरिटी क्या बना हुआ है, ये हट ही नहीं रहा है। ओके, दैट इज गुड, नो इशू एक्चुअली। सो अगर, अब एक काम करते हैं, चलो यहां चलो गाइस, और करेंगे क्या, देखो 14 firewall 1 is the primary, right? Let me go and down it. Is that good? तो डाउन करने के कितने मेथड है हमारे पास गाइस? मैं जा सकता हूं इसके इंटरफेस पोर्ट 5 से ही तो जा रहा है ना इसके पास सब कुछ, मैंने क्या कर दिया इस वाले पोर्ट को, सस्पेंड, पोर्ट 5 सस्पेंड हुए, पोर्ट 6 दोनों को ही सस्पेंड कर दिया। इज दैट गुड गाइस, फॉलोइंग? अब अगर ये सस्पेंड हो गया तो क्या होगा, ये हार्ट बीट नहीं भेज पाएगा, करेक्ट? देन देखो क्या होता है, वेट करो एंड सी। कौन चला गया जी? हैं, एक मिनट रुको, फोर्टिगेट फायरवॉल 2 में कोई इशू है क्या? फोर्टिगेट फायरवॉल 2 शुड कम अप ना। अच्छा, इसने रेप्लिकेट कर लिया सारा सिस्टम का नेम उम सब कुछ, फोर्टिगेट फायरवॉल 1 ने। अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चलो एक काम करते हैं, ये वाले को हम करते हैं फिर से अप, ठीक है, अप करते हैं और ये डब्बे को ही बंद करते हैं, चलेगा? ये डब्बा ही बंद कर दिया। अब चलो देखते हैं क्या होता है। क्या सही था, लॉग आउट हो गया है लॉग इन करो। किसने टेक ओवर कर लिया दोस्त? हेलो गाइस, एक बॉक्स बंद हो गया तो किसने टेक ओवर कर लिया? फायरवॉल 2 में। एक्चुअली ये लिंक बंद करोगे तो लिंक तो दोनों तरफ की बंद हो जाएगी ना, तो जो प्राइमरी था वही प्राइमरी रहेगा, दिस वाज द रीजन। ओके, फायरवॉल 2 ने टेक ओवर कर लिया, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यानी अब अगर मान लो फायरवॉल 1 मेरा आता भी है बाई चांस, तो क्या बनेगा?
कर दिया ऑन। लेट्स वेट एंड सी व्हाट इट इज गोइंग टू बिकम। रिफ्रेश करते रहो। क्या ये ज्वाइन करेगा यूनिट या कुछ और होगा, देखते हैं। सर पोर्ट डाउन होगा तो भी तो वो यही अज्यूम करेगा ना कि डाउन है। हाँ हाँ, अगर प्राइमरी डाउन हो और गया। और मुझे थोड़ा सा डाउट है कि 51 क्यों नहीं आ पा रहा सर। 51 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर होता क्या हाँ है, मैं तो बताया तो थोड़ी देर पहले। हुआ क्या, जब 52 कौन था? फायरवॉल 2। तो हाँ सबसे पहले फायरवॉल फायरवॉल 2 है। 2 ही तो बना था प्राइमरी। सबसे पहले प्राइमरी कौन बना था? फायरवॉल 2 बना था। फायरवॉल 2। तो अब यानी कि ये वाली आईपी लॉगिन है, अब ये आईपी ही बनी रहेगी हमेशा, ये चेंज नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आईपी आपने जो भी दिया था, क्यों दिया था? रीजन ये था कि आपको अपने हाई अवेलेबिलिटी डिवाइसेज को एक्सेस करना है, करेक्ट? आपको जो भी प्राइमरी है उसका एक्सेस चाहिए। अब सपोज करो आप एडमिन हो, ठीक है? आपने, आपके पास, आपको पता है कि मेरे पास दो मैंने यूनिट लगा रखी है, और दोनों यूनिट में से एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा। गुड, आपने प्राइमरी वाले का एक्सेस ले लिया। यहां तक समझ में आ रहा है? एक्सेस ले करके आपने उस पर जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना है आप करोगे, और सेकेंडरी पे हम्म ऑटोमेटिक रेप्लिकेट हो जाएगा। यहां तक सही है? हम्म हुआ क्या, आपका प्राइमरी डिवाइस डाउन हो गया। अब प्राइमरी डिवाइस डाउन हो गया तो क्या आप क्या करोगे? अब सेकेंडरी की आईपी लॉगिन करके लॉगिन करोगे तब काम चलेगा, या जिस पे लॉगिन थे उसी पे लॉगिन रहोगे? नहीं, आईपी तो सेम ही रहोगे लॉगिन आप, लेकिन आपको डिवाइस दूसरी आ जाएगी आपके सामने। बात समझ में आ रही है बात? और यही हुआ यहाँ पे। प्राइमरी पहले आपका फायरवॉल 2 था, ठीक है? दिख रहा है ये तो सबको भाई? कंफ्यूजन तो ये तो कंफ्यूजन रहेगा कि हमने एक्सेस कौन सा कर रखा है। नहीं नहीं, आपको कंफ्यूजन लेना ही नहीं है, आपने सिर्फ प्राइमरी डिवाइस को एक्सेस करना है। किसको करना है? प्राइमरी। आपने दोनों को किया, आपको पता है, आप खुद से कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आपको पता है भाई मेरी कौन सी डिवाइस प्राइमरी बनानी है मेरे को। इज दैट ओके? यहां तक समझ में आ रहा है? हम्म। आपने हाँ। एक डिवाइस का दोनों में से ले लो एक्सेस, और जो प्राइमरी है उसी का एक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास रहेगा हमेशा। यू नॉट इवन, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन दूर है इसमें। क्यों? आपको बार बार आईपी जा करके चेंज नहीं करना है कि भाई मुझे एक्सेस लेना है प्राइमरी का, अच्छा ये वाला बॉक्स अब बन गया प्राइमरी, इसका एक्सेस लूंगा, इसकी आईपी डालता हूं, नहीं। इवन आईपी इज ऑल्सो गेटिंग रेप्लीकेटेड। आईपी भी चेंज हो जा रही है, नहीं देख रहे हो आप? देखो, सेम आईपी से आप देखो, फायरवॉल 2 को भी एक्सेस कर पा रहे हो। अभी कौन है हमारा प्राइमरी? कौन है? फायरवॉल 2, फायरवॉल 2 है। करेक्ट? सेकेंडरी हम्म। कौन है? फायरवॉल फायरवॉल 1। 1 है। अब एक काम करते हैं, फायरवॉल 2 को चल के डाउन करते हैं। ये है ना प्राइमरी, डाउन करो इसको। अब जाओ यहीं पे वेट करो। लॉग आउट हो गया अपने आप? हाँ। आईपी चेंज कर रहे हो आप? नहीं, सेम आईपी से नहीं। आपने फायरवॉल 1 का एक्सेस ले लिया। तो मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है? आप बताओ। आपको आईपी चेंज करने की जरूरत नहीं है बॉस, आप जाओ और यूजर नेम और पासवर्ड डालो, और क्या करोगे आप? अंदर आ जाओ। इज दैट गुड? हम्म। है ना अच्छी चीज? हाँ अच्छी मेरा चीज। 51 फ्री हो जाएगा। हाँ 51 अभी फ्री है। आईपी किसी तो को भी दे इनिशियल सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए दे रखा था ना आपने, सो दैट कि जब तक आप एचए कॉन्फ़िगर ना करो। अब जैसे कॉन्फ़िगर हो गया, प्राइमरी डिवाइस इज द मेन वन। अब सब कुछ वो करेगा जो भी प्राइमरी है, और जो भी प्राइमरी बना उसी की आईपी भी दोनों पे चलेगी अब। इज दैट गुड? हम्म, ठीक। अब क्या करा हमने, हम गए, देखो इसकी क्या है, प्रायोरिटी 100 है फायरवॉल 1 की। अब हमने क्या किया जा करके, एक मिनट रुको, फिर बताता हूँ क्या किया जा करके। हमने इसको फिर से अप कर दिया, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना फायरवॉल 2 की। देखते हैं जा करके क्या काम होता है इधर। आने दो से, अब आने में थोड़ा समय लगेगा। हम्म। हाँ, किसका क्वेश्चन था? अगर प्रायोरिटी दोनों पे सेम है तो क्या होगा, करेक्ट? प्रायोरिटी अगर दोनों पे सेम है तो जो जो भी सिस्टम पहले से रन हो रहा है, जिसका टाइमिंग ज्यादा है, सिस्टम अप टाइम, वो पर्सन बन जाएगा क्या? प्राइमरी। गुड, मिल गया आंसर। अब प्रश्न ये भी आ सकता है, सर प्रायोरिटी भी सेम है। क्या सेम है? प्रायोरिटी भी सेम है, और देखो फायरवॉल 2 बन गया अपने आप प्राइमरी ना, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है। तो एक काम करते हैं ना, फायरवॉल 2 पे जाते हैं, और उसकी प्रायोरिटी भी हम कर देते हैं 100।
अब देखते हैं क्या होता है जी, वेट करो। फायरवॉल 1 बहुत देर से अब तक, फायरवॉल 2 ज्यादा टाइम से फायरवॉल 1 ही अब था ना, अभी 2 तो हमने बंद करा था, अभी ऑन किया है थोड़ी देर पहले। नहीं तो एक्सेस डिनाइड, इट इज सेइंग एक्सेस डिनाइड, ओके नो इशू। फायरवॉल 1 बन गया। देखते हैं कि इसका, एक सेकेंड, 100 है। अब ध्यान से देखो प्राइमरी कौन है। आपके क्वेश्चन का आंसर है जावेद या अरुण, अरुण ने पूछा था शायद। अरुण, सी व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बिकमिंग प्राइमरी इफ द प्रायोरिटी इज सेम? सिस्टम अप टाइम, हु हैज मैक्सिमम सिस्टम अप टाइम among both? Just tell me, man. प्राइमरी वाला। This firewall 1 has the system of time 5 minutes, and the firewall 2 has the system of time that is 1 minute. सो अगर प्रायोरिटी सेम है, जिस जो पहले से अप रहेगा उसको क्या बनाएगा, ये प्राइमरी बनाएगा। अगर मान लो दोनों और कंडीशन में ठो गई, फिर क्या करोगे? तो इसके लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ेगा, और ये है, वो भी चलो करके देख लेते हैं टेस्ट। मैं इसको ना वाइप कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में चले गए लग रहा है। वाइप कर दिया, ऑल द कॉन्फ़िगरेशन हैज गॉन, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे दोनों को, कॉन्फ़िगरेशन सारी हमने हटा दी है, यानी कि यहां से एक्सेस भी चला गया होगा। अब यहाँ पे अगर कुछ करने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट गेट एनी एक्सेस, मतलब वो सिस्टम ही जा चुके हैं। तो क्या करना है, चलो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फिर से। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करने में समय नहीं लगने वाला है दोस्त, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास चीजें सेव हैं। ओह, यहाँ पे देखो चल भी रहा था सिंकिंग वगैरह। हम लोग तो इधर आए ही नहीं। आ गया आप? एक तो भाई आप आ गया लग रहा है। हाँ, एक आप आ गया, 14 निगेट फायर वॉल और आप दोनों आप है। एडमिन पासवर्ड क्या है? अगर नया लेके आओगे ब्लैंक, चेंज करो। एडमिन पासवर्ड क्या है? ब्लैंक, चेंज करो। हो गया। पहला क्या लगाओगे कॉन्फ़िगरेशन? फोर्टिगेट फायरवॉल ऑन, सॉरी, फोर्टिगेट फायरवॉल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करोगे पहला? क्या किया था हमने? ये नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर सकते हो, करना जरूरी है, कर देते हैं क्योंकि नेम हमें चाहिए ही चाहिए। लेट मी गो ऑन फायरवॉल 1 एंड डू दिस। हो गया मेरा होस्ट नेम चेंज। फायरवॉल 2 पे आऊंगा मैं अपने, और यहाँ पे भी यही चीज करने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गया पहला कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, गुई के पैरामीटर्स में डाल दूंगा, ठीक है। गाइस सी, कीप योर आई ऑन इट। गुड। आई थिंक रीलोड का ऑप्शन है, रीबूट। अब चल के हमें देखना पड़ेगा किसका कितना टाइम है हुआ है। आपका देख लेते हैं एक बार। 192 1.52 ये फायरवॉल 2 है। एडमिन 123, ये है 192.51। एक सेकेंड, 51 को क्या हो गया? पक्का यही आईपी दे रखी ना हमने? टू, अच्छा यहाँ आईपी नहीं दी। अभी तो ले ही नहीं रहा था। चल भाई फिर से आ गया। वैसे केस ये होगा कि एक बंदा कोई ना कोई पहले आएगा ही, एक साथ दोनों थोड़े ऑन करोगे आप। हो सकता है कि एक ही साथ स्विच ऑन कर दो। अप टाइम किसका है? सिस्टम टाइम। अप टाइम कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है अप टाइम किसी को? हेलो हेलो। यस, 3 मिनट 7 सेकेंड। अच्छा सॉरी, इसमें रोक दिया था बीच में। इस पे कितना दिख रहा है?
3 मिनट 16 सेकेंड, 3 मिनट 21, 3 मिनट 20। किसका अब टाइम ज्यादा है, किसका कम है? इसका 26 हो रहा है, 28 29। ये 2 सेकेंड, 1 2 सेकेंड पीछे है ना फायरवॉल टू, नहीं गए? सही बात है ये। तो अब क्या किया जाए दोस्त? तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों यूनिट्स को बंद करके एक ही साथ ऑन करते हैं, क्या बोलते हो? तब भी एक साथ ऑन नहीं होंगे ये, तो यानी एक बंदे का तो अब टाइम ऊपर नीचे रहेगा ही। क्यों गए? सही बात की नहीं? हाँ जी बोलो। अब जिसका यस सर। जिसका थोड़ा ज्यादा रहेगा वो प्राइमरी बन जाएगा। अब पॉइंट ये है कि क्यों प्राइमरी और सेकेंडरी हमें लड़ाई करनी भाई? क्योंकि दोनों को दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, पोर्ट सेम है, सब कुछ सेम ही तो है। सिमिलर टाइप की डिवाइस हमेशा किसमें बनाई जाती है? क्लस्टरिंग में दी जाती है। बात समझ में आई? तो कोई दिक्कत हमें उसमें है ही नहीं। ये प्राइमरी बने भाई साहब या ये प्राइमरी बने भाई साहब, हमें कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। ओके, बट कंडीशन इज हु हैज द मोर अप टाइम विल बिकम प्राइमरी इफ द प्रायोरिटी इज टाइड। अगर प्रायोरिटी टाई हो गई तो चलो करके ही देख लेते हैं ना। आई एम ऑन फायरवॉल 2 गाइस, सी यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्टिव पैसिव। यहाँ पे चलो प्रायोरिटी को सेम रखता हूँ। cluster 1, पासवर्ड में कुछ नहीं डालता, सेशन पिकअप दैट इज गुड। और हार्ट बीट हमारा जो इंटरफेस है पोर्ट 5 है, और आप चाहो तो पोर्ट 6 को भी डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो क्योंकि पोर्ट 5 पोर्ट 6। अब इसमें भी आप इंटरफेस की प्रायोरिटी भी दे सकते हो। यहाँ पे फिर लिखिएगा द इंटरफेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी प्रीफर्ड। आप समझ रहे हो कौन से हार्ट बीट के लिए यूज में आएगी? यहाँ पे रिडंडेंसी आप दे सकते हो क्योंकि आपके पास 2 हार्ट बीट पोर्ट है। हार्ट बीट पोर्ट जब बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो सब ना? मतलब ये वाले पोर्ट्स जो दोनों के बीच में लगे हुए हैं, ये बताने के लिए कौन एक्टिव है कौन चला गया। अगर 2 आपने यूज कर लिए तो इसकी प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा रखोगे वो वाला पहले यूज होगा। अगर दूसरा वाला डाउन हो गया तो सेकेंड वन जो कि आइडल बैठा था, भले उसकी प्रायोरिटी वगैरह कम थी, क्योंकि अब वो अकेले है तो वो बंदा टेक ओवर कर लेगा। इज दैट गुड गाइज? है ना? तो चलो पोर्ट 5 ही रहने दो। यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। अब मैं चलता हूँ फायरवॉल 1 पे। और यहाँ पे जाऊंगा मैं सिस्टम के अंदर, यहाँ पे करूंगा एक्टिव पैसिव, सब कुछ सेम है। cluster 1 लिखूंगा यहाँ भी, और यहाँ पे सेम हार्ट बीट पोर्ट 5, क्लिक ऑन ओके। अब देखते हैं कौन भाई साहब प्राइमरी बनते हैं कौन सेकेंडरी। अभी सिंक हो रहे हैं, अभी सिंक होने दो। प्राइमरी बन गया आपका फायरवॉल 1, अपने आप ही देखो प्राइमरी दिखा रहा है क्योंकि 6 मिनट 1 सेकेंड इसका, इसका 6 मिनट है। समझ में आ रही बात सबको? सब लोग आई थिंक देख पा रहे होंगे। सिंक होने दो, 3 4 मिनट लेता है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट डन हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी कौन बनेगा इसका समझ में आ गया भाई? अरुण? यस? अरुण, जावेद, विक्रम, अभिषेक। यस अभिषेक, यू आर गेटिंग इट राइट? ओके। गुड। यस विक्रम, यू आर Yes, अंडरस्टैंडिंग? understood. दैट्स गुड, दैट्स गुड देन। ओके, हो जा भाई, फटाफट सिंक हो जा। 2 4 मिनट ले लेता है भाई ये सेशंस वगैरह सिंक करता है ना, और भी चीजें करता है। ये भाई जाओ यार तुम। वेट करना पड़ेगा। अगर किसी कोई प्रश्न है तो पूछो। कल लैब आपका हो गया था विक्रम? करा था लैब उसके बाद? हाँ जी हो गया था। अच्छा है, गुड गुड। अरुण आप लैब कर रहे हो? अरुण, जावेद? सर मीनवाइल एक क्वेश्चन था, अगर जैसे हम ये फायरवॉल पे लॉग देखते हैं, हाँ हाँ अरे आप इस पे जाना लॉगिंग रिपोर्टिंग पे, नीचे नीचे, हाँ जी, जी। आपको फॉरवर्डिंग ट्रैफिक पे, हम्म। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पेसिफिक ट्रैफिक का देखना है कि भाई नेट हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन सी आईपी एड्रेस में नेट हो रहा है। मेरा हम्म। पॉइंट ये है कि ऐसे कॉलम्स वगैरह और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ से नहीं देखो फिर आप,
अगर ऐसा देखना है तो यहाँ से देखो, डैशबोर्ड पे जाके ना यहाँ से देखो, 40 व्यू सेशंस पे, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री दिखेगी, आप नेट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी दिखेगा, हालांकि वहां भी दिखेगा जहां आप गए थे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली आप ऐड कर सकते हो। देखो आपके पास ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे देख रहे हो, एबल टू सी। अच्छा, ये तो सेशंस हो गया ना, फायरवॉल के सेशंस हो गए, जितने सेशन बन रहे फायरवॉल पे, राइट? हाँ यहाँ पे सेशंस हैं सारे, और वहां पे लॉग्स, वही बात ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैफिक का बनेगा, यहाँ पे पूरे सिस्टम का भी बनेगा, ठीक है। सिस्टम को कहाँ पे बनेगा? ये यहाँ पे सारा दिखेगा आपको, जितने सेशंस होंगे ऑलमोस्ट सारे। और डिटेल में देखना है तो आप CLI से देख सकते हो। सेशंस, ओके। बहुत ज्यादा अजीब सा ही है होता है यार ये देखो, पूरा 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 ही दिखा दिया तुम्हें पूरे सिस्टम का, ठीक है। अच्छा, और छोटे में देखना है समरी, छोटा वाला, ये देखिए, ये छोटू है समरी है। यस, गुड। तो समरी बहुत ज्यादा ही छोटी होगी, मतलब इस पे एटलीस्ट ये तो दिखा दे कि अलाउ है या डिनाई है ट्रैफिक, ये तो सिर्फ हाँ सॉल्व तो फिर यहाँ से आपको देखना पड़ेगा सर। आप यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हो, दिख दिख रहा है, लिस्ट देखना है आपको, लिस्ट सेशन सिंक देखना है, सिंक को रीसेट करना है, कोई सिंक्रोनाइजेशन होगा तो रीसेट करना है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब हमारे पास GUI होता है ना, तो वी डू नॉट नीड टू गो इन द CLI। कुछ चीजें हैं जो कि आपको CLI से ही इनेबल करनी पड़ेंगी, जैसे याद है, जैसे HTTP को अलाउ करना है, टेलनेट को अलाउ करना है, तो क्योंकि GUI तो देगा ही नहीं उसको, क्योंकि नेक्स्ट जेन फायरवॉल फीचर है, तो आपको अंदर से ऑप्शन है करने का। सो इवन एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम CLI, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि हमें चीजें यहाँ बहुत अच्छे से दिखती हैं। और ये करेक्ट। इसमें लॉग्स में जो ये जो लोकल ट्रैफिक है, ये टू दी फायरवॉल है, मतलब जो सिस्टम लॉग हो गया एक तरीके से। किसमें, इसमें नहीं नहीं, लॉग लॉग एंड रिपोर्ट में ये जो सिस्टम, सॉरी, लोकल ट्रैफिक है, इसमें कौन सा, मतलब टू दी फायरवॉल जो ट्रैफिक आता है वो आता है, या हाँ सिस्टम? हाँ बिल्कुल, अपने आपके लोकल मतलब आपके इसी फायरवॉल का ट्रैफिक, इसका खुद का कोई अगर लॉग है तो इसके या द्वारा जनरेट किया हुआ। या ये इस पे कोई ट्रैफिक आ रहा है, या ये जनरेट कर रहा है बेसिकली कोई ट्रैफिक, तो? हाँ यस यस, दैट इज रियली टोटली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर डब्बा, इस और बॉक्स ये से रिलेटेड। स्निपर ट्रैफिक कौन सा है सर? स्निफर जब कभी ये स्निप करेगा, स्निप मतलब कैप्चर? आपने क्या किया, हाँ कोई ट्रैफिक आप कहीं भेज रहे हो तो आपने स्निपर टूल लगा रखा है, तो ये बीच में बंदा स्निप कर रहा है उसको। फॉर एग्जाम्पल यू आर सेंडिंग एनी ट्रैफिक फ्रॉम हियर, समझना बात को। आई ठीक विल है। बी शोइंग, इफ आई विल गेट चांस ना, देन आई विल बी शोइंग यू कि यहाँ से जब ये बंदा भेज रहा है कोई चीज, तो बाद में आपको, आपने क्या किया, इसको एज ए स्निपर भी यूज कर रहे हो। तो जो आपका खुद का सेशन है ना, आपके खुद के इंटरनल यूजर का, उसके सेशन को ये स्निप कर रहा है ये। आर यू गेटिंग इट? नहीं समझ पा रहे हो? देखो, एक तो होता है यहां से आप जो ट्रैफिक भेज रहे हो आगे, वो तो सही है, ये बंदा फॉरवर्डिंग ट्रैफिक पे डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ ठीक पॉलिसीज। है। ठीक है। एक है कि तुम्हारा खुद का जो सेशन बन रहा है ना, तुम्हारे तुम्हारे खुद के PC पे या यूजर होस्ट पे, उसको भी स्निप करने के लिए अगर करोगे, देन इसमें ये वाले दिखेगा। तो इसका यूज क्या है फिर? इसका यूज ये है, आप देखना जैसे मान लो आपको शक हुआ, कोई एक यूजर है तुम्हारे कंपनी में, जिसको देख रहे हो यार अननेसेसरी वेबसाइट पे जाता रहता है हमेशा, हम्म। करेक्ट। अब आपको लगा यार मैं इसको ना थोड़ा सा आपके ऊपर, उसके ऊपर बन गया थ्रेट है, लग रहा है ये इसका, या तो सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया है या कोई दिक्कत है। आपने क्या किया, उसके सारे लॉग को पढ़ना चाह रहे हो आप, कि इसके सिस्टम पे ये और कहाँ कहाँ जाता है, ये और क्या करता है अंदर अंदर, ये इंटरनली, मतलब अच्छा। ये इंटरनली कहाँ कहाँ बात कर रहा है, अंदर में ही। इधर जब मेरे थ्रू जाएगा तब मैं पढ़ पाऊंगा ना, कि अगर इंटरनेट पे जाएगा, लेकिन कंपनी के अंदर क्या पता किसी और सिस्टम को कंप्रोमाइज कर रहा हो, क्या पता है हैक हो चुका हो। तो उस केस में लोग क्या करते हैं, इंजीनियर्स, स्निपर लगा देते हैं यहाँ पे, तो यानी इसकी पूरी की पूरी चीजें क्या हो जाएंगी, इसका पूरा सेशन टेबल रेप्लिकेट हो जाएगा तुम्हारे फायरवॉल पे। मतलब एक तरीके से हैक ही हो गया ये? एक तरीके से आप उसको मॉनिटर कर रहे हो उस यूजर को। मॉनिटर ही हो गया, मतलब जो जो ये काम कर रहा है हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं फायरवॉल पे। यस एग्जैक्टली, यस, गुड।
लेकिन ये वाले वर्जन पे जाना मत बहुत डिटेल में, कि मतलब इस पे दिखाई देगा ये, लेकिन है इसीलिए बना हुआ है, ओके। क्योंकि ये है ना लाइसेंस नहीं है ना ये सिस्को को छोड़ के बाकी लोग लाइसेंस्ड वर्जन मांगते हैं, अगर आपको सारे फीचर देखने हैं तो सिस्को दे देता है फ्री में इवैल्यूएशन, बस स्पीड बहुत स्लो कर देता है वो। इसको तो दे देता है सर, पैसे बहुत है उसके पास। नहीं नहीं, वो पैसे बहुत हैं और उसकी मार्केटिंग अलग है थोड़ी औरों से। ये सब ना सस्ते सस्ते डिवाइस हैं, जैसे फोर्टिनेट वगैरह सस्ते में लाइसेंस मिल जाएगा, सिस्को का लाइसेंस सस्ता नहीं है ना। तो वो क्या करता है कि वो होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई जितने लोग मेरे प्रोडक्ट को जानेंगे, अच्छे से उसको यूज करके सीखेंगे, उतने लोग अपनी कंपनी जब काम करेंगे तो बोलेंगे भाई यही वाला लगाओ डिवाइस, राइट। तो मेरा बिकेगा। उसका ये कॉन्सेप्ट है, वो इस तरह से काम करता है। चलो देखें, आई थिंक आप आ गया होगा ना। तो डैशबोर्ड पे जा करके मैं क्या करूंगा, स्टेटस पे क्लिक करके विजेट ऐड कर दूंगा एक, एच ए नाम से। दोनों दिख रहे हैं, ये देखो, ठीक है। प्राइमरी फायरवॉल 1 है, यानी कि फायरवॉल 1 वाली आईपी सभी जगह अप्लाई होगी। अगर मैं जाऊं और फायरवॉल 1 को अभी डाउन कर दूं, तो आईपी 1.51 ही रहेगी, लेकिन फायरवॉल 2 बन जाएगा मेरा प्राइमरी। वेट करते हैं, थोड़ा समय ले लेता है भाई कई बार। एक बार सिंक हो गया फिर इशू नहीं होता। अब दोनों आप करोगे तुरंत आ जाएंगे अब, ठीक है। लॉग आउट हो गया, सेम आईपी है भाई, आईपी नहीं चेंज हुई, देखो अब आ जाएगी कौन, फायरवॉल 2 आ गया, समझ में आया। तो यही है, जो प्राइमरी पहले बना तो उसी की आईपी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी सभी जगह। इज दैट गुड। अब चलो, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया पूरा। अब हम करेंगे यहाँ पे दोनों को अप, कोई इशू नहीं है, लेट देम सी व्हाट इज गोइंग ऑन। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एंड व्हाट इज दैट नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इन आवर केस गाइस, किसने ये ले रखा है भाई चलाने वाला है। अच्छा सॉरी, सिस्टम का इशू है, गॉट इट। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम करेंगे कॉन्फ़िगर सिस्टम सेटअप, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, दैट इज गुड। अब हम करेंगे हाई अवेलेबिलिटी, भी हम कर चुके हैं ना, कर चुके हैं गाइस। ये चीज करना बहुत जरूरी है, ये है सेशन पिकअप कनेक्शन लेस इनेबल। एक कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है गाइस। कनेक्शन लेस का मतलब यूडीपी सेशन को भी पिकअप करे, नहीं तो यूडीपी सेशन को पिकअप नहीं करेगा वो। नहीं समझ पाए, कितने लोग समझ यूडीपी, गए जो मैंने बोला। नहीं यूडीपी सेशन को पिकअप मतलब क्या, कनेक्शन मतलब कनेक्शन टेबल, यस, जैसे जो कनेक्शन कनेक्शन टेबल टेबल, नहीं बनाएगा यूडीपी का। देखो ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट, जब आप इसको इस तरह से करते हो ना, क्लस्टरिंग करते हो, तो होता क्या है कि सेशन तो जा रहे हैं, दोनों के दोनों को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन वो टेलनेट वाले ही, सॉरी, जो टीसीपी बेस्ड सेशन है कनेक्शन ओरिएंटेड, उसी वही सिर्फ जा रहा है एक दूसरे के पास। यूडीपी बेस्ड कोई लोग ट्रैक नहीं कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो आप अगर चाहते हो यूडीपी और टीसीपी दोनों हो, तो आपको जाकर के ये कमांड चलाना पड़ेगा। कहाँ पे सीएलआई पे, चलाओगे, सीएलआई पे ही चलेगा ये कमांड। सिलाई पे ही चलेगा, अब यही वाली दुख है देख लो तो ये आपको जाकर के सिलाई पे ही चलाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग सिस्टम एच ए। और कहाँ चलाओगे, जो आपका प्राइमरी है उस पे चलाओगे, ठीक है। और रेप्लिकेट कर देगा दोनों पे। इज दैट गुड गाइस, जो फॉलोइंग। भी एक्टिव फायरवॉल है उस पे चलेगा। यस सर, या। सो अभी अगर मैं अपने एच ए पे जाऊं, यहाँ पे सिस्टम एच ए दिख रहा है, ये प्राइमरी। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, एडिट इन सीएलआई, देखो यहाँ पे एडिट इन सीएलआई करोगे, इसके अंदर आ जाओगे आप, आ गए। सेशन पिकअप इज इनेबल्ड है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला भी इनेबल करना पड़ेगा। बात समझ में आई, गेट सेशन पिकअप कनेक्शन लेस इनेबल। इस पे सर सेशन देखने की कमांड क्या रहती है? कहाँ पे, इस पे सेशन देखने की कमांड सीएलआई पे, अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक सेशन देखना हो मेरे को सीएलआई पे। फिल्टर कमांड यूज करो आप, अच्छा। डायग्नोसिस सेशन देन फिल्टर। अब फिल्टर के बाद आपके पास बहुत सारी सोर्स पोर्ट सोर्स एंड है ना स्पेसिफिक, डेस्टिनेशन लगा दो इस पे। हाँ सोर्स या डेस्टिनेशन लगा दो, आपको उसके रिलेटेड सिर्फ दिखाएगा। मतलब गुड। फिल्टर के बाद डायरेक्टली सोर्स आईपी एड्रेस डाल दो या कीवर्ड लिखना पड़ेगा सोर्स?
SRC इधर लिखना पड़ेगा, ये रहा ना, SRC लिखना पड़ेगा, SRC, देन हम आप IP दो। IP एड्रेस। डायरेक्ट नहीं लेगा, ओके। आपको बोलना पड़ेगा सोर्स में चेक करो, किस फील्ड में चेक करो, क्योंकि जब आप इसको ऐसे करते हो, ऐसे, तो आपको पूरी लिस्ट दिखा रहा है, अभी इसको पता तो हो कौन सा तुम देखना चाह रहे हो इसमें से। राइट। ठीक है, अच्छा, गुड। ये अभी करंट ऑल सारे सेशंस है फायरवॉल के। जी जी, HAID वगैरह तो नहीं देख रहे हो, जीरो वगैरह लिखा हुआ है, यानी हाई अवेलेबिलिटी वाला ही दिख रहा है सिर्फ ये। अच्छा, अभी और कुछ हमने करा कहाँ है, कोई कॉन्फ़िगरेशन कहाँ हमने किया, कुछ करा ही नहीं है। ठीक है। नहीं, तो हमने वो कर दिया, यानी कि यहाँ पे कर दिया मीन्स क्या, ये प्राइमरी था, तो यानी सेकेंडरी पे भी ऑटोमेटिक रेप्लिकेट हो ही गया होगा। लेकिन देखो सेकेंडरी का एक्सेस आपके पास है नहीं अभी, क्योंकि प्राइमरी ही आप एक्सेस करोगे ना, सेकेंडरी तो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट होगा। रिफ्रेश कर लो, दैट इज गुड। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। ये देखो हार्ट बना हुआ है कहाँ पे, पोर्ट नंबर 5 पे HA हार्ट बीट इंटरफेस है। अब आगे बढ़ते हो इसी सोपान में, और अब आगे बढ़ के हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स गो टू द गाइड, क्या बोलता है। सिंक प्रोसेस विल टेक अप टू 5 मिनट्स, तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 बार कर लिया। और ये डैशबोर्ड में जाकर के ऐड विजेट्स में जाकर के HA विजेट एंड IDT हम ये भी कर चुके हैं, करेक्ट कर लिया। लाओ कॉन्फ़िगर करते हैं फायरवॉलिंग डिवाइस फॉर फायरवॉलिंग, कॉन्फ़िगर द प्राइमरी डिवाइस फॉर फायरवॉलिंग। प्राइमरी डिवाइस हमारी फायरवॉल 1 है, यस, नो फायरवॉल 2 है, सॉरी। ओके गुड, फायरवॉल 2 है अभी, ये देखो। तो हम चलो करेंगे प्राइमरी डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो भी करेंगे वो सेकेंडरी डिवाइस पे ऑटोमेटिक रेप्लिकेट होगी। तो पहले चलो करते हैं, क्या करने वाले हम, जोन बनाएंगे। सिंपल, क्या जोन बनाएंगे, 2 ही जोन बनाना है हमें, इनसाइड एंड आउटसाइड, करेक्ट। देखो यहाँ पे, सॉरी, कितने जोन बनेंगे यहाँ पे, एक तो ये बनेगा, ये आउटसाइड हो जाएगा, और इधर वाला इनसाइड हो जाएगा। इनसाइड पोर्ट 2 है दोनों पे, तो पोर्ट 2 किसी एक पे ले लो, क्योंकि देखो आइडेंटिकल रखने का बेनिफिट देखो, अब दोनों में से कोई बंदा पाएगा, पोर्ट 2 यहाँ भी है, पोर्ट 2 यहाँ भी है, पोर्ट 1 यहाँ भी है, सेम सेम जगह दोनों कनेक्टेड है, करेक्ट। और बीच में आपने एक स्विच लगा रखा है, सो दैट मजा आ जाए करके काम। अच्छा, अब क्या करना है, अब चलो इस वाले को बना देंगे इनसाइड, और पोर्ट 3 को बना देंगे आउटसाइड। गुड, तो हम पोर्ट के लिए जाएंगे, सेम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, हमें कुछ नया नहीं करना। नेटवर्क पे जाओ, इंटरफेसेस पे जाओ, जोन क्रिएट करो, सिंपल स्टफ। जोन का नाम है इनसाइड, और कौन सा पोर्ट है जी, पोर्ट 2, क्लिक ऑन ओके। फिर दूसरा जोन बनाएंगे, जोन का नाम है आउटसाइड, पोर्ट 3, दैट्स इट, हो गया जी। अब इसको कर दो रिफ्रेश अगर करना चाहते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा ये है, क्या ये चीज दूसरे वाले भाई के पास गया होगा, हाँ जी गया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर फॉलोइंग, यानी सारा कॉन्फ़िगरेशन आप किस पे करोगे, ये वाला आपका प्राइमरी है, इस पे करोगे, और ये ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, इस पे रिप्लिकेट हो जाएगा वो। अगर ये भाई साहब बंद होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सारा का सारा हिसाब किताब, यानी इसी का डुप्लीकेट खड़ा है सामने। अब गोइंग ऑन, एक प्राइमरी और सेकेंडरी बन गया, मतलब आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन प्राइमरी पे करना, सेकेंडरी पे करने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ अपने आप जाएगा। ये बना दिया हमने। इंटरफेस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या करना है जी, फिजिकल इंटरफेस पे जाओ, डबल क्लिक करो पोर्ट 2 पे, और IP कॉन्फ़िगर करो, क्या 10 11 11 10, गुड, समझ में आ रहा सबको। पोर्ट 2 एलियस दे दिया मैंने, नॉट दिस। ये है इनसाइड ना, लैन, IP दे दिया, पोर्ट 3 पे चलो, हो गया ना इनसाइड पोर्ट 2। पोर्ट 3 पे चलो, क्या IP देना है इधर, ओ सॉरी, पिंग और SSH हमने ऑन नहीं किया गया उधर, अभी कर देते हैं। डबल क्लिक ऑन पोर्ट 3, कॉन्फ़िगर इंटरफेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, आउटसाइड हो जाएगा, और उसकी IP हो जाएगी 1.20.10। ये नया नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को पहले से पता है सब, करेक्ट।
कॉपी पेस्ट गाइस। ओके चलो, पोर्ट 3 एलियस क्या होगा इसका गाइस? आउटसाइड। कोई चीज नया बताया मैंने यहाँ अभी तक? पुराना ही तो है। यहाँ पिंग को इनेबल कर दो और कर दो ओके। हमें पिछले वाले पोर्ट 2 पे जाना है और यहाँ पे हमें टेलनेट वगैरह इनेबल करना था। कहाँ गया टेलनेट? तो यहाँ ही नहीं। इसे सेट कर दो और पिंग इनेबल कर दो, दैट्स इट। ओके, कम डाउन साइड, कम कम आउटसाइड एंड डू व्हाट? स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग करें गाइस? हेलो, इससे पहले एक चीज देख लो कि इन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। इन वाले पे ये इंटरनेट का हमारा होगा ना, इस पे देखो कोई कॉन्फ़िगरेशन है? शो आईपी इंटरफेस, सॉरी। ओह अच्छा, 20.2 है। शो आईपी राउट। अच्छा, एक राउटिंग भी है, ठीक है। इसकी तरफ, उप्स मैन, 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट इट गाइस। आईपी राउट .0.0.0 .0.0.0 22 1.20.10 ये होना चाहिए ना। और इसको हटा दो, गलत हो रखा है। देखो राउटिंग देख रहे हो, सब गलत हो रखा था। ये तो यहाँ का हो गया। ये इंटरनल पे चलो, अगर कहीं समझ नहीं आएगा मेरे को रोक देना, ठीक है? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है। शो आईपी राउट, यहाँ पे भी गड़बड़ी है, तो यहाँ पे हम जाएंगे आईपी राउट 0.0.0.0 वन, ना 10.11.11.10 ये होना चाहिए। और दूसरा जो ये 11 वाला हिसाब किताब था, इसको हमें क्या करना है? चेक करते हैं पिंग करके। 10.11.11.10 को पिंग कर पा रहा हूँ, दैट इज गुड। ओके, और इंटरनेट से पिंग करके देखते हैं हम। डू पिंग 192.1.20.10 को पिंग कर पा रहा हूँ। यस, आई एम एबल टू पिंग, दैट्स गुड गाइस। ओके, और अगर मैं अपने FortiGate फायरवॉल पे जाऊं तो ये भाई साहब हमारे हैं क्या? एग्जीक्यूट पिंग 10.11.11.1, या इट्स रीचेबल, दैट इज गुड। और यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो अपने इंटरनेट को कर पा रहा हूँ। यस, सी, यस आई एम रीचेबल फ्रॉम हियर। सो दैट अब हमें क्या करना है? कनेक्टिविटी बनाना, सो दैट कोई इंटरनल यूजर अगर जाना चाहे इंटरनेट पे तो जा पाए। इसके लिए मैं इन पे प्राइमरी डिवाइस पे अपने करूंगा डिफॉल्ट राउटिंग। करें? यस गाइस, यू आर विद मी? यस। स्टैटिक राउट पे जाएंगे, क्रिएट न्यू, कुछ नया नहीं बता रहा हूं, पहले से जानते हो सब आप। नेक्स्ट होप दे दूंगा, दैट्स इट। अपने आप इंटरफेस पिक कर लेगा ये। क्लिक ऑन ओके, दैट्स इट। लेकिन अभी भी ये जाएगा नहीं बाहर कोई ट्रैफिक लेके, क्योंकि हमें फायरवॉल पॉलिसी डाली नहीं है। तो फायरवॉल पॉलिसी चलो अलाउ करते हैं। ट्रैफिक क्या है? इन टू आउट ऑल करना है हमें अलाउ, ठीक है? इन टू आउट ऑल करें? यस करते हैं। कैसे करेंगे? देखो ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, बस मेन चीज वही था कि एचए कैसे बनाएंगे बस। बाकी चीजें तो अपने आप ही हो जाएंगी वहां रेप्लिकेट। इन टू आउट ऑल, इनकमिंग इंटरफेस हो जाएगा आपका इनसाइड, आउटगोइंग इंटरफेस हो जाएगा आउटसाइड। सोर्स में दे दिया सब कोई बंदे को ऑल, डेस्टिनेशन भी दे दिया मैंने ऑल। स्केड्यूल ऑलवेज, टाइम बेस्ड एसीएल है गाइस ये। देखो लिखा है ना यहाँ पे, देखो ये टाइम बेस्ड एसीएल है। ये वाला स्केड्यूल में जो लिखा हुआ है, पूरे दिन के लिए आप करना चाहते हो ये चीज या किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए करना चाहते हो? ये व्यवस्था भी है कि ये पॉलिसी कितनी देर तक अप्लाई रहेगी, ये फायरवॉल पॉलिसी कितनी देर तक अप्लाई रहेगी, उसके लिए आपके पास स्केड्यूल भी है। जैसे आप चाहते हो कि आ, हमारे इंटरनल यूजर अंदर से बाहर हमेशा ना जाएं, किसी एक इंटरवल के टाइम पे जाएं। जैसे होता है ना कई बार कंपनी में, आप देखोगे ना, अलाउड नहीं होता तुम्हारे सिस्टम पे कि आप इंटरनेट चलाओ। पूरे दिन नहीं अलाउड है, लंच टाइम पे अलाउड है। तो इस बात, इस ऐसी पॉलिसी बनाओ और यहाँ पे आकर के क्या कर दो, लंच टाइम को क्या कर दोगे, स्केड्यूल बना दोगे। लंच टाइम को अलाउ होगा, बाकी और समय पे ये आपको इंटरनेट पे नहीं जाने देगा। है ना अच्छी चीज? इसको बोलते हैं टाइम बेस्ड एसीएल इन सिस्को। सिस्को में बोलते हैं ऐसे। इधर इसमें स्केड्यूल है, स्केड्यूल कर सकते हो आप। गाइस मेकिंग सेंस? तो वो शेड्यूल का टाइम इंटरवल कहाँ से सेट होगा? अगर आधे घंटे के लिए मुझे ट्रैफिक अलाउ करनी है इंटरनेट के,
यहाँ पे लिखा है ऑल डे, हम्म, चेंजेस करो कुछ, एक सेकंड नया बना लो। टाइम के उससे क्रिएट, ये रहा सर, क्रिएट वन टाइम स्केड्यूल, रिकरिंग स्केड्यूल से स्केड्यूल करो, वन टाइम स्केड्यूल करो, ये बनाओ ना यहाँ पे सब जो बनाना है आप, लिख रहा है। क्या उसमें ओके। हम कर नहीं रहे हैं सर भी सॉल्व कर दिया, अलाउ। नहीं, जैसे ये रूल बना लिया तो मैं रूल्स की लिस्ट में कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये शेड्यूलर वाला रूल है? तब कुछ अलग उसका दिखेगा कि हाँ कुछ हाँ, अलग? नाम जब ये करोगे, नाम बोल रहा है ना, इधर देखो ना सर, ये देखो नाम लिखने का आ रहा है ना, नाम यहाँ अच्छा। टेबल, इससे पता लगेगा। जैसे लंच, इंटरनेट, इंटरनेट लंच टाइम, यस ऐसे बना दिया। अब आपके लिए हो गया ना, सही है। अब आपको पता है इंटरनेट चलाना है, इस बंदे को लंच टाइम में एक्सेस देना है, नहीं? गुड, ओके कर दिया आपने। अब क्या होगा, जो टाइम दे रखा है इस टाइम के बीच में क्या होगा, ये सर्विस आपकी चलेगी, बाकी और समय पे क्या हो जाएगी, नहीं चलेगी। ठीक है। अब आपने इसको रिकरिंग बना दिया, मतलब डेली के लिए, तो वही है, यहाँ पे आप डाल दो रिकरिंग, डेली के लिए अप्लाई कर दिया, किस किस दिन के लिए अप्लाई करना है वो भी डाल दो। ये करके ट्राई करना है, आप लोगों का होमवर्क है गाइस, आप इसको ट्राई करना, ठीक है। बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत मजा आता है करके आप या तो कंपनी में अगर चांस मिलेगा ना, तो आप देखना, अगर इस तरह का होगा फायरवॉल से ब्लॉक कर सकते हो। फोर्टिगेट फायरवॉल अपने आप में बहुत ही महान है ओके, गुड गाइस, फॉलोइंग टिल हियर, इन टू आउट हमने सारी ट्रैफिक को अलाउ कर दिया, यानी कि मेरा इंटरनल यूजर कहाँ जा सकता है। अच्छा, लॉगिंग को इनेबल नहीं किया सही से, एक मिनट रुकना, लॉगिंग यूटीएम सिर्फ लॉग आ रहा है, यहाँ पे जाकर के ऑल करना है अप्लाई, अब ठीक है। गुड, टिल हियर फॉलोइंग, एनी क्वेश्चन सो फार? आई डोंट थिंक सो एनी यू गाइस वुड हैव। एक मिनट, ये तो हमारे पास आई नहीं नेटवर्क, ये भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, लेकिन अभी हम कर नहीं रहे, तो ये ठीक है, सबको दिक्कत कोई नहीं किसी को? एक मिनट रुकना, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूँ, वो क्या है। अब मैं कोई एक ट्रैफिक इनिशिएट करूंगा अंदर से, ठीक है दोस्त, करें इनिशिएट और देखें हम जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, यही करना है अब। चलो, और लेट्स गो एंड डू इंटरनेट, कैन आई पिंग, ओह नो नॉट फ्रॉम हियर, सॉरी, इंटरनेट से तो आ ही नहीं सकता, इंटरनल करना है हमें, पिंग 192.1.20.2, जा पा रहा हूं, जा पा रहा हूं। ओके, लॉग बन गया होगा, क्या बोलते हो, लॉग बना होगा, क्या बोलते हैं आप लोग, यस नो? ओह, इतना सारा बाइट चला गया, दैट इज गुड। 26 जुलाई को बना है, एक दिन पीछे चल रहा है मेरा टाइम। लॉग एंड रिपोर्ट में जाओ, फॉरवर्ड ट्रैफिक, यहाँ भी आ जाओ भाई थोड़ा वेट करना पड़ता है, सिंक होने में समय लेता है कई बार लॉग। अच्छा, यहाँ समय ले रहा है क्या, डैशबोर्ड में दिखा रहा है क्या, 40 व्यू सेशंस, लेट्स सी हियर एज वेल, टिंग 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 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में रियल वे है, यहीं पे देखते हैं ज्यादातर लोग 40 व्यू सेशंस में जाकर, 40 व्यू पॉलिसीज, लेट इट कम अप, 40 व्यू वेबसाइट्स, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो, और अगर आप कुछ और देखना है तो वीपीएन है, वीपीएन ऐड कर लो, वीपीएन की डिटेल्स देखेगी, राउटिंग ऐड कर सकते हो, है ना, राउटिंग टेबल आपको देखना है, ये सारी चीजें इधर देख सकते हो आप, क्वारंटाइन कौन हुआ, ये सब, 40 क्लाइंट कोई आपका ऐड है, 40 क्लाइंट जस्ट लाइक एनी कनेक्ट होता है ना आपके सिस्को में, वैसा ही इसका अपना खुद का है 40 कनेक्ट, मतलब क्लाइंट है, वीपीएन क्लाइंट, जो एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करते आप सिस्टम पे, वो है।
तो 40 व्यू सेशन में से भी चला गया भाई। दिखा दे भाई, क्यों मजे ले रही है। हाँ। अच्छा 1 मिनट, चलो फिर जनरेट करते हैं हम लॉग खूब सारा। ओके, लेट्स गो ahead and see again now guys here. Fresh. आ गया सारा फिलहाल तो। अब अगर फॉरवर्डिंग लॉग में जाएंगे, दिख रहा है क्या पॉइंट, ये है। यहाँ भी दिखने लग गया, देखो पॉलिसी वगैरह जो मैच हुई सब दिख रहा है। तो नेटिंग वगैरह की डिटेल तो सर यहाँ से देख ही लेते हो आप, है ना विक्रम। यहाँ से देखो नेट आईपी नेटिंग हो रही है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो डैशबोर्ड में जाके, ये स्पेसिफिकली मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये वाला पूरा व्यू मॉनिटरिंग के लिए है। जैसे ये स्टेटस पे जाके देखोगे, देखो दिख रहा है सब कुछ यहाँ पे, है ना। उसके लिए बनाया गया स्पेसिफिकली, इट इज फॉर दैट पर्पजेज। अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे आते हैं और इसको कर देते हैं इतनी बार। करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, अब इस सिस्टम को कर देंगे डाउन बीच में, चलेगा, जाने दो। अब हम जाएंगे यहाँ पे, और ये प्राइमरी कौन है, ये ना फायरवॉल 2 आई थिंक प्राइमरी था हमारा, मैंने उसको कर दिया डाउन। सो लेट्स सी इफ ट्रैफिक इज स्टिल गोइंग और नॉट। ये है मुद्दा कि नहीं है, जा रहा है अभी भी ट्रैफिक, कहीं रुकावट है। यस गाइस टेल मी। सही है सर। फायरवॉल 2 के थ्रू जा रहा था ना ट्रैफिक, ये बंद कर दिया, लेकिन देखो अभी भी जा रहा है ट्रैफिक। इसको रिफ्रेश करोगे तो आप लॉग आउट हो जाओगे, दैट इज अनदर सिनेरियो, क्योंकि आपको लॉग इन दूसरे डब्बे पे करना है। फायरवॉल 1 है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या कर लिया है इसने। अब देखते जाओ यहाँ पे क्या क्या आ गया है। सब कुछ आ गया। क्या हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल 1 पे किया था अभी तक? यस नो गाइस टेल मी। नहीं, देखो सब कुछ आ गया, पूरा कॉन्फ़िगरेशन इधर। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन आया नहीं है, इवन आई होप सो इसको दिखाना तो चाहिए, क्योंकि टेक्निकली इट शुड बी शोइंग। सेलेक्ट लॉग डिटेल, इट्स नॉट शोइंग नाउ। एक सेकेंड रुको, कहाँ गया ये डैशबोर्ड सेशंस। दिख रहा है लॉग, और लॉग भी देखो दिख रहा है जो उधर जा रहा था। इज दैट गुड? यहाँ पे ना सिंक होने में लॉग एंड रिपोर्ट में थोड़ा समय लेता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तुरंत दिख रहा है। हेलो, सेशन सारे दिख रहे हैं यहाँ पे दोस्त। 27 MB जनरेट कर दिया मैंने। अब नहीं जा रहा है क्या? 1 मिनट रुको, देखो जरा जाके। ओहो इट्स गोइंग ऑन मैन। ज्यादा ही भेज दिया लग रहा है। तो अगर मैं आऊं लॉग एंड रिपोर्ट पे, माइट बी इट विल बी शोइंग नाउ। इट्स नॉट शोइंग, इट समटाइम्स टेक टाइम। एक ही सेशन बना था ना, उसी में जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। इवेंट्स, इवेंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एच इवेंट्स फॉर एग्जांपल, वर्चुअल क्लस्टर्स मेंबर स्टेट मूव्ड। ये देखो आपका एच का इवेंट भी दिख रहा है इसके अंदर। सब देख पा रहे हो ना ये सब? यस सर। हार्ट बीट पैकेट लॉस्ट, जैसे बंद किया होगा तो पैकेट लॉस्ट हुआ होगा। वर्चुअल क्लस्टर डिटेक्टेड मेंबर डेड, वर्चुअल क्लस्टर्स मेंबर स्टेटेड मूव्ड, दिख रहा है। ये जो अभी आपका क्लस्टर चेंज हुआ है, तो देखो ये जब आपने क्लस्टरिंग बनाई थी क्या लिखा रहा था, वर्चुअल क्लस्टर डिटेक्टेड मेंबर ज्वाइन द सिंक स्टेटस विद द प्राइमरी, द सिंक स्टेटस विद द प्राइमरी, ये सब दिख रहा है। ये सारी चीजें देखो, एच एक्टिविटी रिपोर्ट, यहाँ पे देखो डिवाइस सेट एज एच मास्टर इंफॉर्मेशन, एच एक्टिविटी रिपोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ दिख रही होती हैं इन इवेंट। और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हो आप इसमें। ये सिस्टम इवेंट है, दिख रहा है सबको? ये हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है। वो अगेन जब आप काम करते रहोगे तो आप देखो ये सिंक हो गया, लेकिन समय लिया ना यहाँ पे लॉग एंड रिपोर्ट, दिख रहा है सबको? अब थोड़ा समय लिया है इसमें सिंक होने। ओके गाइस, गेटिंग इट? व्हाट नेक्स्ट? यस सर। भाई इसको कैंसिल कर दे। कंट्रोल 6 से होगा, ठीक है।
99% हमारा गया है। कुछ राउंड ट्रिप में इशू आया है बीच में, पिक हुआ होगा। तो हो क्या रहा है इसमें? एनीवन हैव एनी आइडिया लाइक हाउ इट इज हैपनिंग? कैसे तुम्हारे इंटरनल डिवाइस को पता लग रहा है कि भाई ये वाले को मुझे आगे से भेजना है ट्रैफिक और इसको नहीं भेजना है? जी, एनीवन वांट टू ऐड एनी पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर एंड? प्लीज गो अहेड एंड ऐड। क्वेश्चन है कि आपका जो इंटरनल यूजर है इसको कैसे पता कि अब ये वाले भाई साहब आप आए हैं और इनको मुझे भेजना चाहिए क्या मैसेज है? तो एक काम करते हैं, चलो कुछ चीजें चेक करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, कैप्चर पे गया और पोर्ट 2 को मैंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरे फायरवॉल 1 का पोर्ट 2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फायरवॉल 2 का हो गया, देखते हैं क्या हो रहा है इधर। ठीक है, अब चलते हैं फायरवॉल। ये तो अभी बंद है, इसको आप कर दो और यहाँ पे जाओ कैप्चर पोर्ट 2। एक पोर्ट 2 है, इसको भी कैप्चर करेंगे। पहले वाले में पोर्ट 2 चल रहा है ना? ठीक है, यहाँ तक सबको दिक्कत तो नहीं, किसी को सब सही है? अब इसको छोटा ही कर लेते हैं ना, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड देना, यहीं से देखेंगे हम। हाँ, पोर्ट 2 ऐसे, लेट इट कम अप। या गुड गुड गुड, ठीक है जी। अभी दोनों अप हैं, चल के देखते हैं प्राइमरी कौन डब्बा है। फायरवॉल 1 ही होगा क्योंकि दोनों का हमने आई थिंक प्रायोरिटी डिफरेंट रखी थी ना, सेम रखी थी प्रायोरिटी। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे जाके स्टेटस देखना चाहूँ, अच्छा इसमें एच ऐड ही नहीं किया था क्या? किया था? नहीं किया था। कौन ऐड कर लेते हैं यहाँ से, एच ऐड विजेट्स, ऐड हो गया, ये रहा। अच्छा सॉरी, वही चीज़ तो है, यह है तो एडिट। यहाँ जाके एच में देख लो, सिस्टम एच, ओके। हु इज प्राइमरी? फायरवॉल 1 राइट। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है अगर फायरवॉल 1 है तो। अब क्या करने वाले हैं हम दोस्त? अब हम क्या करेंगे, अब इस सिस्टम को आएंगे इंटरनल 1 पे और यहां से एक ट्रैफिक इनिशिएट करेंगे। सॉरी, ये पहले से खुला हुआ है इंटरनल मेरा। यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे शो आर, दिख रहा है? सबको दिख रहा है ये? यस 10 11 11 10 का क्या मैक एड्रेस है? 0001। अच्छा, अब चलो इसमें से देखते हैं कौन से ऐसे बंदे का मैक एड्रेस क्या है। करें चेक, कैसे पता लगेगा ना? क्यों भाई? अगर मैं 40 गेट 1, हालांकि इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं, यहीं से देख सकते हो आप। हालांकि हार्डवेयर एड्रेस भी देख सकते हो आप। तो प्राइमरी कौन है, यहाँ से जा करके मैं गया अपने नेटवर्क पे, इंटरफेस पे, पोर्ट नंबर 2 है ना, इसको ओपन कर लो। मैक एड्रेस 00 दिख रहा है? ये मैच होना चाहिए, ये प्राइमरी है, ये मैक है, समझो। जिसको समझ में आएगा गुड है, नहीं आएगा फिर मैं समझाऊंगा। तो एक काम करते हैं ना, एक नोटपैड लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, वेरिफिकेशन में हम चल रहे हैं अभी। ओप्स सॉरी, कॉपी नहीं हुआ क्या वो? एक मिनट, चलो जी, कॉपी, विल इट बी कमिंग हियर? आ गया। सेम यही मैक एड्रेस कहाँ पे है? इंटरनल के आर्प टेबल में।
थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, बाकी है चीज सेम। ठीक है ना? थोड़ा डिनोशन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिनोट अलग तरह से किया गया है, बाकी सेम ही चीज है। नहीं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सेम टू सेम डिनोट कर दो। यस, सिमिलर। यस गाइस। यस या अब मैं पिंग करता हूँ, पिंग करता हूँ 192, सॉरी 192.1.20.2 को, और यहाँ पे रिपीट लगा देता हूँ, लेट सपोज सेम 100 बार। ठीक जा रहा है। अब एक काम करो, चलो फायरवॉल 1 ही है ना मेरा अभी प्राइमरी। हाँ फायरवॉल 1 है। अब मैं जा करके फायरवॉल 1 को कर दूंगा बंद। देखो अब यहाँ पे चलो, शो आर, शो आर, शो आर, कुछ चेंज दिखा किसी को अभी तक? नहीं ना? आप यहाँ चलोगे, इट विल बी लॉग्ड आउट, कम अप मैन, लेट्स गो ऑन द पोर्ट नंबर 2 इंटरफेस पे। कोई डिफरेंस? नो डिफरेंस। मतलब फोर्टीनेट अपने आप में बहुत ही सिंपल है ना? आप सबको याद है वर्चुअल आईपी और वर्चुअल मैक करके कॉन्सेप्ट होता है किसमें? कहाँ पे होता है ये? जब आप सिस्को के प्रोडक्ट पढ़ रहे होते हो। वर्चुअल आईपी वर्चुअल मैं तो एक्टिव एक्टिव में नहीं होता शायद, पता नहीं। वर्चुअल आईपी होता है ना, और मैक एड्रेस वो आपस में चेंज कर रहे होते हैं। नहीं, यहाँ स्विच के लेवल पे। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है एक्चुअली, अगर ध्यान से देखोगे ना, इट इज नॉट जस्ट डूइंग वन थिंग, इट इज डूइंग सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट, पहले तो ये आईपी को भी रेप्लिकेट और मैक एड्रेस सबको रेप्लिकेट कर दे रहा है उठाकर। नॉट ओनली सिंगल थिंग, एवरीथिंग इट इज वर्किंग देयर एज अ डुप्लीकेट, एकदम सेम टू सेम आइडेंटिकल। मतलब उसका उसका आपने क्या डमी खड़ा कर दिया? नहीं, एकदम सेम टू सेम बंदा ही खड़ा है। इवन मैक एड्रेस आल्सो इज गेटिंग चेंज्ड, नॉट गेटिंग चेंज्ड, दे आर आल्सो द सिमिलर वन। ये मैंने दिखाया आपको इधर से, इसलिए तो आपको इसलिए कोई भी इशू बीच में आने ही नहीं दे रहा है ये। मैक एड्रेस भी रेप्लिकेट हो जाता है? देखो हो रहा है ना, मैंने कहा नया बताया आपको? भाई मैं तो सामने दिखा रहा हूं ना आपको, देखो। नहीं सर, लाइव नेटवर्क में जैसे होता है कि मतलब मैक एड्रेस तो हर डिवाइस का अलग अलग होता है ना, हर इंटरफेस का। हाँ जी, हाँ जी। फिजिकल डिवाइस पे तो मैक हम्म। एड्रेस भी कॉपी कैसे कर लेगा? देखो मैक एड्रेस होता तो फिजिकल डिवाइस का यूनिक ही है, लेकिन चेंज तो किया जा सकता है। मैक एड्रेस चेंज नहीं होता। मैक एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे का मैक एड्रेस वो अपनी डिवाइस पे ले लेता है एक तरीके से। तो ये क्या करता है ना, जब आप इसको एचए मोड में डिप्लॉय करोगे ना, तो ये सारे फीचर्स को ऑटोमेटिक इनेबल कर देता है। जैसे अभी हम्म। हमारे साथ में क्या हुआ था यहाँ पे, ये अगर एक पहली बार ये प्राइमरी बन गया तो यही वाली आईपी यूज हो रही है हर बार, यानी आईपी भी दूसरी गायब हो चुकी है। यानी अगर आप 1.52 ढूंढना भी चाहोगे तो अब नहीं ढूंढ मिलेगा वो। मैक एड्रेस हर पोर्ट का जो है मैक एड्रेस इन्होंने ले लिया, फिक्स हो गया अब। यानी इन्होंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को सिंक कर लिया आपस में, और आपस में समझौता कर लिया, भाई गोइंग ऑन यही चीज हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आप अगर डाउन होते हो तो मैं अप आ जाऊंगा, और अगर मैं डाउन होता हूँ तो आप अप आ जाना। इंक्लूडिंग मैक एड्रेस। हाँ सब कुछ देखो ना, मैं नया थोड़ा नहीं, देखो अभी फायरवॉल 2 है। ठीक, अभी एक काम करता हूं मैं, फायरवॉल 2 ही रहेगा वैसे वो। मैं इसको अप करता हूँ और इसको डाउन करता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। देखो। या फायरवॉल 1 को ही अप कर दो, फायरवॉल 2 को हम डाउन नहीं करते, है कर दिया दोनों भैया, देख लो। ना? नहीं नहीं, इसीलिए उसको डाउन किया, नहीं तो फिर वो वही बना रहेगा ना प्राइमरी, क्योंकि दोनों का क्या है,
प्रायोरिटी तो सेम है ना, इसलिए बोल रहा था। अच्छा, प्रायोरिटी सेम है। Okay. अब अगर इसको मैं अभी रिफ्रेश करूं तो जाहिर सी बात है पहले तो लॉग आउट होंगे भाई लोग ये, क्योंकि चेंज हुआ है। अब फायरवॉल, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब एडमिन देखो कौन बना प्राइमरी, वही लॉगिन हो जाएगा। फायरवॉल 1 प्राइमरी है, ठीक। मैक एड्रेस देखो सेम है। ये एक्चुअल में इसकी इसकी सिंपलीनेस है, ये सिंपलनेस है इसका, कि भाई इस वजह से आपको कोई फालतू का काम करने की जरूरत नहीं है। अब बात समझ रहे हो? ये फोर्टिनेट रियल में अपने आप बहुत ही सिंपल एक फायरवॉल है, जिसके अंदर आपको जो कुछ भी करना है बहुत सारे डिटेल्ड लेवल में, अच्छे लेवल पे कर सकते हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, चीजें इतने आसान है कि जैसे एंड्रॉइड फोन चलाते हैं ना, उस तरह से आप कर सकते हैं। सो बेसिकली सर, ये जो है फॉर एग्जांपल फायरवॉल 1 अगर डाउन होती है, फायरवॉल अप आ जाए, तो जो कनेक्टेड डिवाइस होती है हम्म। उस पे मैक एड्रेस बेसिकली वो दूसरे पोर्ट से लर्न करने लग जाएगा, क्योंकि मैक एड्रेस तो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल वो जो नीचे स्विच है या नीचे जो यस, चीज एग्जैक्टली, यू आर राइट। जैसे स्विच नहीं, मैंने डमी स्विच लगा रखी है। हाँ जी, अगर यहाँ स्विच होती तो इसके मैक एड्रेस टेबल में फॉर डेफिनेटली पोर्ट एग्जांपल चेंज हो अभी जाएगा। फायरवॉल 1 है तो अभी फायरवॉल 1 का जो मैक एड्रेस है वो पोर्ट 2 से लर्न कर रहा है एक तरीके से ट्रैफिक भेजने के लिए। तो अगर फायरवॉल 1 डाउन हो जाएगा तो फिर फायर दूसरे पोर्ट से वो मैक एड्रेस लर्न करेगा। एकदम करेक्ट बोल रहे हो आप। तो स्विच लेवल पे तो सच में वो चीज होगा, तो स्विच तो करेगी ही, जाहिर सी बात है। लेयर टू फॉरवर्डिंग, स्विच तो मैक एड्रेस के बेस पे ही करेगी, जाहिर सी बात है। मैक एड्रेस अलग पोर्ट पे लर्न हो जाएगा भाई। यू आर राइट हियर। ओके। तो वो सर मैक एड्रेस, वैसे मैक एड्रेस टेबल अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा? फॉर एग्जांपल अगर ऑलरेडी मैक जो है लर्न है पोर्ट नंबर 2 से, हाँ। और फायरवॉल 2 फायरवॉल 1 डाउन हो जाता है, ठीक है, तो अभी भी तो मैक एड्रेस टेबल में पोर्ट नंबर 2 ही दिखाया जाएगा। ये है कि जब ट्रैफिक जाएगा तो फिर वो आर्प रिक्वेस्ट क्यों करेगा? क्योंकि इनिशियल तो आर्प रिक्वेस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि मैक एड्रेस तो ऑलरेडी है नहीं, उसके ऊपर। नहीं, आपका होस्ट आर्प रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेगा अगर इसके आर्प के टेबल में एंट्री है, ठीक। अब अगर, राइट। अब स्विच के पास अगर ऐसी कोई ट्रैफिक आती है जिसका मैक एड्रेस नहीं है उसके पास, और लग के आ रहा है उधर से ट्रैफिक, भाई ये है मैक एड्रेस। अगर स्विच को पता लगता भाई मेरे मैक एड्रेस टेबल में तो एंट्री नहीं इस मैक की, मैं कहाँ इसको फॉरवर्ड करूं ट्रैफिक को, फिर स्विच क्या नहीं, करेगी? वो स्विच तो विद सही इन, है। रुक जाओ, बताता हूं, आप आता हूं आपके पूरे पे, रुको एक, आपके पूरे पे एक को आंसर आ रहा हूं मेरे भाई, 1 मिनट रुको, बताता हूं। एक सेकंड, ये यहाँ आओ, ये देखो, ये आप यही बोल रहे हो कि भाई ये स्विच है, मान लो ये भाई साहब प्राइमरी थे, डाउन हो गए, ठीक। अब राइट। ये वाला ने टेक ओवर कर लिया, तो जाहिर करेक्ट। सी बात है स्विच को तो फॉरवर्डिंग डिसीजन देना है ना, लेकिन ये पोर्ट तो डाउन हो गई, यानी ये राइट। बंदा ही डाउन हो गया। लेकिन तो स्विच स्विच पे कैसे मैक डिसाइड एड्रेस करेगी? टेबल है अभी पोर्ट 2 से, लेट से। तो होता क्या है ये समझो पहले, कैसे आपका फोर्टिनेट फायरवॉल काम करता है इसको समझो। पहली बात तो हर 200 मिली सेकेंड, नॉट सेकेंड, 200 मिली सेकेंड पे एक हार्ट बीट भेजता है अपने पड़ोसी को, ठीक। ठीक है। और 6 बार अगर हार्ट बीट फेल हो गई, कितनी बार? 6 थ्रेशोल्ड है उसका 6 टाइम्स, यानी 1 सेकेंड, 1.02 सेकेंड, ठीक। अगर उतनी देर तक क्या हो गई, अगर इसको कोई हार्ट बीट नहीं मिला मान लो उसके पड़ोसी को, तो इसको क्या घोषित कर देगा? डेड हो गया हो। और जैसे उसको डेड घोषित करेगा, ये मैक एड्रेस सेम उठा करके क्या करेगा? स्विच को भेजेगा। तो वो और इसमें समय ब्रॉडकास्ट नहीं लगेगा, करेगा। तुरंत ही जैसे इसको नया मैक एड्रेस मिले, मैक एड्रेस नए पोर्ट में मिलेगा, क्या करता है आपका स्विच? हाँ, वो टेबल अपडेट कर देगा ना, फिर तुरंत ट्रैफिक अपडेट कर देगा, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। पोर्ट 2 पे राउट कर देगा। हाँ। और एक अच्छी बात और है, अब आप आपके मन में आ रहा होगा, अच्छा 1 सेकेंड तो लगा, इसमें तो पैकेट ड्रॉप हो सकता है। भाई स्विच के पास एक बहुत अच्छी चीज होती है जिसे बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं? ओके। बफर। अगर इट इज नॉट एबल टू सेंड एनीथिंग, इट विल बफर। समझ रहे हो बात को? तो ये बफर करके रखेगी जब तक इसको मिल नहीं जाएगा। अगर डाउन हो गया, इधर से नया आया, ये बफर में भी रख सकती थोड़ा बहुत, और उतनी देर में काम बना देगी। स्विच एक्चुअली बहुत ही फास्ट होती है। हम एक्चुअल में, मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छी चीज। सपोज करो आपने यहां से आर्प लगा करके भेजा, आर्प का क्या टाइम आउट होता है सिस्को में? एनी आइडिया?
ओके, मैक एड्रेस का क्या टाइम आउट होता है, एनी आइडिया? 4 आवर्स। 5 मिनट। मैक एड्रेस टेबल टाइम आउट, ओके, एंड आर टाइम आउट। देखो ये बढ़िया चीज, देखो इन सिस्को, सॉरी लिखना पड़ेगा, अदर अदर का अलग अलग होता है, क्योंकि पीछे तो हमने सिस्को ही लगा रखा है ना। 5 मिनट होता है किसमें, सिस्को में, सिस्को अरूबा जूनिपर एंड मोस्ट ऑफ द स्विचेस, इनमें 5 मिनट का होता है मैक एड्रेस टाइम। आर्प कैश होता है 4 घंटे के लिए। आर्प पेंट्री कितनी देर के लिए होती है, सिस्को की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, कितनी देर, 4 घंटे। अब सोचो, सोचने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली बात है ये, एक्चुअल में अपन सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। मान लो यहां से एक यूजर है जिसको किसी इंटरनेट के यूजर के पास जाना है, समझना बात को, तो ये क्या करेगा, अगर ये इंटरनल यूजर को इंटरनेट पे कहीं जाना है तो ऑब्वियस सी बात है अपने डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस लगा के भेजेगा। करेक्ट, एग्री? राइट। ये क्लियर है ना पैकेट फ्लो वाला? हाँ जी, हाँ जी। तो अपने डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस लगा के भेजेगा, और कहां से लगाएगा, आर्प टेबल में। आर्प टेबल में एंट्री कितनी देर तक रहती है, 4 घंटे तक। सोचो ये यूजर ने पिछले 8-10 मिनट तक कोई कम्युनिकेशन नहीं किया इंटरनेट पे, इंटरनली काम कर रहा था, कंपनी के अंदर का सारा यूजर से बात कर रहा था, यानी स्विच का यूज करके कहीं इंटरनेट वगैरह पे ये नहीं गया, यानी अपने डिफॉल्ट गेटवे का यूज करके कहीं नहीं गया। जाहिर सी बात है अगर नहीं गया तो यानी कि ऊपर से क्या हुआ, दे समझो, डिफॉल्ट गेटवे से ये स्विच ने भी कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, डिफॉल्ट गेटवे के साथ में स्विच ने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। अगर स्विच के ऊपर कोई कम्युनिकेशन डिफॉल्ट गेटवे के साथ में नहीं हुई तो 5 मिनट के अंदर में तो आपका स्विच क्या कर देगा, मैक एड्रेस से टेबल से एंट्री को क्या कर देगा, वो मैक एड्रेस की डिलीट कर देगा ना, क्योंकि 5 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा वो। इसे तो चाहिए एकदम नया नया, क्योंकि स्विच है भाई। करेक्ट। अब अगर इसने एंट्री डिलीट कर दी है अपने मैक एड्रेस टेबल से, और मान लो पता लगा 15वें मिनट पे बंदे को फिर इंटरनेट पे जाना है, तो ये फिर भेजेगा, इसके पास तो मैक एड्रेस है इसके आर्प कैश में। करेक्ट। इसने लगाया मैक एड्रेस, स्विच के पास आ गया, अब स्विच के पास तो एंट्री है ही नहीं। अब स्विच कहां फॉरवर्ड करेगा उस ट्रैफिक को, बताओ, कहीं नहीं करेगा। तो ये सीक्रेटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स ये क्या करता है, मैक एड्रेस को लर्न करता है ऑटोमेटिकली। ये बात समझ रहे हो? इवन ये आपके यूजर को पता भी नहीं चलता कि इसने लर्न कर लिया मैक एड्रेस। तो स्विच इतनी फास्ट होती है। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? नहीं समझ पाए? ओके। कितने लोग समझ पाए? ये स्विच है मान लो, ठीक है। इसका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आप करके देखना ये। चलो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ना, ये करके देखना है एक बार, अभी जब नेक्स्ट क्लास में आना मेरे को बताना है ये काम कर रहा है नहीं। तो ठीक। हाई अवेलेबिलिटी का कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो गाइस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम हाई अवेलेबिलिटी पार्ट? नॉट येट। और सर इसमें हाई अवेलेबिलिटी के लॉग्स कहाँ पे चेक करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, कोई बात नहीं, देख लो फिर भी। हाई अवेलेबिलिटी का लॉग आपको चेक करना है तो यहां से चेक कर लो, इवेंट्स में जाके चेक करके आएगा ऑप्शन, ठीक है, यहां से। ठीक है, कि आपके दोनों डिवाइसेज के बीच में क्या बात हो रही है, ये यहां से चेक करोगे। आपको नॉर्मल लॉग चेक करना है तो सेम वही प्रोसीजर है, जैसे मतलब ये एक्चुअल में नॉर्मल फायरवॉल की तरह ही है दोनों, बस इनका इंटरनल मैकेनिज्म ये है कि भाई अगर तुम डाउन हो जाओगे तो मैं टेक ओवर कर लूंगा, सो दैट कि हमारे पास रेडंडेंसी रहे मेरे नेटवर्क में, दैट्स इट। ओके। ठीक है। ठीक है गाइज, सो आज इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास में, वो मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, यानी अपने फायरवॉल को स्विच की तरह यूज करेंगे हम। अभी किसकी तरह यूज कर रहे हो आप? लेयर 3 डिवाइस की तरह। अभी हम यूज करेंगे L2 डिवाइस की तरह। जैसे मान लो आपके कंपनी के अंदर में ही आप चाहते हो विद इन लैन ये आपको फायरवॉल कनेक्टिविटी दे अच्छी सी, और साथ में पॉलिसी भी लगाओ आप इस फायरवॉल। या डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो, आई विल बी टेलिंग यू देन। ओके, वट ओके एवर पॉसिबल सिनेरियोज आर देयर, और किस तरह से डिप्लॉयमेंट होता है इंटरप्राइजेस के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। टिल ठीक है। देन प्लीज लर्न करो, और वो जो है कॉन्सेप्ट बता रहा था ना स्विच वाला, उसको देखना आप लोग, बड़ा मजेदार चीज है वो। ठीक है, पैकेट फ्लो। ठीक ओके है। गाइज, बाय बाय।
ओके सर, Keep learning. थैंक यू सर। Bye.